So good morning, student. Can you listen me? Yes, sir. Okay. So we will start a new chapter today. That is the projection of point and the projection of line. Okay. So whenever we are projecting a point or a line, so that will be if a point is A, so its top view will be always represented by this letter A, and the front view will be represented by A dash. Okay, and the side view A double dash. Okay, similarly if a line is there, the top view will be AB, the front view will be A dash B dash, and the side view will be A double dash B double dash. So this will be clear in the next slide. So you see, these are the four quadrants: first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. So in the first quadrant, suppose the observer is looking from here. So this is a horizontal plane, this is a vertical plane VP. So we will draw it like this. So this is a XY is a point. If we are looking from this side, then it will look like this. Okay. So XY will be the reference line. So VP will be always like this. So front view from this side will be drawn on VP, and the top view of this object will be drawn on HP. Similarly, if a point or object is here, so VP is here, HP is here. Object is here, so it is HP here, VP here. HP here, VP here. And we will open this always in this fashion. So it will be like this. So we will be opening this. So it will be, we will be drawing the reference line XY always with a horizontal line, and above will be VP and below will be HP. Because when we open this quadrant like this, so it will be VP on the above side, HP on the lower side. So is that clear? Okay. Now you see this very carefully. So we are doing projections of a point in the first quadrant. So first quadrant was this. Okay. Second is this. Third is this. And fourth is this. So first we will learn how to draw the orthographic projections of a point which is lying in first quadrant, second quadrant, third quadrant, and the fourth quadrant. So first I am discussing for the uh, first quadrant. So if A is a point, you see here, if A is here, if we are looking from this side, so this A point, the front view will be A dash and the top view will be on the horizontal plane. If you see from the top, so TV is for the top view, FV is for the front view, right? So when we open this up like this, so XY is our reference line. So this point is shown here and this point is shown here. So is that clear? ये क्लियर हुई बात सर सबको नहीं? यस सर Yes. Yes, sir. हाँ, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, तब आगे चलेंगे. So point A is above HP and in front of VP. So ये फिगर आपको दिया नहीं होगा. So this you have to imagine. So point A is above HP and in front of VP. So is that clear? Yes, sir. Clear. अब ये है point A is above HP and in VP. So it is above HP but in VP. So that means it is lying here in the vertical plane. So A point is here, not here. Okay. So when you see the front view, A dash will be its view, and when you see the top view, so the top view will be in HP or in the reference line because it is in VP only. So when you open it up, this figure will be made. Okay. So A dash is made here and A is in the reference line. XY is the reference line.
Okay, XY is the reference line. So similarly, if a point A is in HP, so it is lying on HP, you see here, this point is A. And it is in front of VP, so it is in front of VP, so it is here. So if you see the front view, so this A will be merging here, so A will be the top view and the front view will be here at the reference line. So these are the orthographic projections. So problem will be like this. आपको ये point दिया होगा. You will be given these problems. You have to imagine this and you have to make this. बना पाएंगे? Yes, sir. बना लेंगे. हाँ. So if I say if a point A is 3 centimeter or 3 millimeter, 3 centimeter लिखो, in front of VP and 4 centimeter above VP. So this distance will be 4 because it is 4 centimeter above VP, and this distance will be 3 3 because centimeter. it is okay. So when you will draw here, so this distance will be 3 centimeter and this distance will be 4 centimeter. So you have to locate this like this, okay, in a single line. Clear हो गया? Yes, sir. Clear. If I Yes, say if a point A is in HP and it is say 5 centimeter above HP, so which will be 5? So this will be 5. समझ में आया? If I say a point A is in HP and it is 4 centimeter in front of VP, so this will be 4. So where it will be? It will be here. So these are the projection of points when they are in the first quadrant. समझ में आया? आगे चले? Yes, sir. आगे बढ़िए. आज सोनू कुमार को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? या सर समझ में आ रहा है सर. चलो. So projection of straight line. So ये मैं अभी straight line पे बाद में जाऊंगा. So let me draw a exercise here. So if I say a point A is 4 centimeter behind VP and 3 centimeter above HP. तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? इसको ड्रॉ करने के लिए प्रॉब्लम है. तो इसको सबसे पहले वी विल ड्रॉ ए रेफरेंस लाइन XY. ठीक है. अब ये कहता है पॉइंट, तो आपने एज्यूम करना है ये सबसे पहले क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड. नाउ इट इज सेइंग ए पॉइंट A is 4 centimeter behind VP. So this is VP and this is HP. समझ में आया? तो कहता है पॉइंट A is 4 centimeter behind VP. तो इसका मतलब यहाँ पे होगा पॉइंट A. ठीक है. It is 4 centimeter. तो ये कितना दिया है? 4 centimeter. And it is 3 centimeter above HP. And this is how much given? 3 centimeter. ठीक है. तो अब इसके प्रोजेक्शन बनाने हैं हमें. ड्रॉ द प्रोजेक्शन. तो आपने उसी तरह करना है. यू विल ओपन इट अप लाइक दिस. ठीक है. सो दैट नीचे HP आ जाए, ऊपर VP आ जाए. ठीक है. सो जब आप इसका प्रोजेक्शन बनाओगे तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ से आएगा? इट विल बी हियर. सो दिस विल बी 3 centimeter. So you will make here, because it is a front view, you will make here A dash and this will be 3 centimeter. Okay. And when you are looking from the top, so this HP will be always also
ऊपर चला जाएगा ना, ये बीपी तो यहाँ रहेगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज 3 सेंटीमीटर, एंड इसी के ऊपर में इट विल बी 4 सेंटीमीटर। Now 4 centimeter will be here. So when you are looking from this side, so A from the front view it will be here, and the this will be 3 centimeter here. So top view में मैंने बताया तुमको, top view में हमेशा you have to make A, and इधर क्या बनाओगे, A dash. So A, this point will be A dash, and this point will be, इसको आप अलग से बना सकते हैं, लेकिन यही बनाना चाहिए, दिस पॉइंट विल बी ए। तो समझ में आया ए डैश कैसे बना प्रोजेक्शन? सर एक Yes, और बार sir. एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये पॉइंट पीछे है, ये तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर, पीछे है, वो समझ में आ रहा है। हाँ, तो जब आप इसे टॉप से देखेंगे तो इसका व्यू कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा ये। यस सर। और जब साइड से देखेंगे इधर से या इधर से देखेंगे, उसका व्यू कहाँ बनेगा, यही बनेगा ना। यस सर। तो ये क्या होगा, ये ए डैश होगा, एंड दिस विल बी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 3 इधर आएगा और ये 4 सेंटीमीटर आएगा, इसलिए इसको ऐसे बना दिया। ओके सर। दूसरी प्रॉब्लम करो, ए पॉइंट ए इज 3 सेंटीमीटर बिलो, ये आपको ट्यूटोरियल दूंगा मैं, बिलो एचपी, एंड 4 सेंटीमीटर बिलो एचपी, 4 सेंटीमीटर बिलो एचपी बिहाइंड वीपी। अब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बताओ मुझे, इन विच क्वाड्रेंट दिस विल बी देयर, सोच के बताओ। पॉइंट ए इज 3 सेंटीमीटर, आप लोग पेंसिल पेन लेके बैठेंगे तब समझ में आएगा, ये नहीं कि मुझे सुन रहे हैं सिर्फ। ये इसका हमने थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए यहाँ से देखिए, ए पॉइंट इज 3 सेंटीमीटर बिलो एचपी, तो इसका मतलब 3 तो यहाँ हो गया इसके, और ये कहता है 4 सेंटीमीटर बिहाइंड वीपी। सो वीपी ये है हमारा, बिहाइंड वीपी मतलब यहाँ। So that means our point A is here, right? Now it is 3 centimeter below HP. So this is 3 centimeter, right? And 4 centimeter behind. इसको पहले लोकेट कर लेना है, ठीक है। Now it has to be opened up like this. तो ये आपका HP था, ठीक है। तो HP VP ऊपर चला जाएगा, HP नीचे आ जाएगा। सो नाउ इसको जब हम टॉप से देखेंगे तो इसका टॉप व्यू यहाँ पे क्या आएगा, दिस विल बी ए, ठीक है, और इसका इधर बनेगा, ठीक है, इट इज फ्रंट व्यू, सो इट इज ए डैश। समझ में आया? जब आपने इसे ओपन किया तो क्या हुआ, दिस पॉइंट ए ये ऊपर चला जाएगा। इस केस में क्या होगा, अवर एचपी इज हियर, ये आपका वीपी हो गया ना, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, एचपी। So this will be here. So it is A dash. तो ये कितना हो जाएगा, this will be 4 centimeter, and this will be how much, 3 centimeter. 3 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात है नहीं? यस सर। इसी तरह एक चौथा केस होगा इसका, ए पॉइंट इज 3 सेंटीमीटर
below HP and 4 centimeter in front of VP. In front of VP. तो ये किस में आ जाएगा ये? Fourth quadrant. This will be in the fourth quadrant. It is 3 centimeter below HP and in front of VP is 4 centimeter. तो इसके इसी तरह आप बना लेंगे. इसका जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? एक प्रोजेक्शन विल बी हियर, एक प्रोजेक्शन इधर आएगा. जब आप नीचे बनाएंगे तो दोनों इसके नीचे बनेंगे. समझ में आ गया? Yes sir, समझ में आ गया. एक ही बच्चे को आया या 9 बच्चों को आ गया? यस सर आ और गया बच्चे नहीं सर. बोल रहे. किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए जी. दिस विल कवर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स. अब वो कहता है अगर इफ ए पॉइंट इज लाइंग ऑन एचपी ऑन वीपी, तो उस केस में ये इसका इमेज जो बनेगी वो ये रेफरेंस लाइन पर बनेगी. यू सी हियर दिस केस ए पॉइंट ए इज इन एचपी. ए इज इन एचपी, ठीक है, एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी. तो इसकी इमेज कहाँ बनी? यहाँ पर, रेफरेंस लाइन पे. ठीक है. तो ये मैं आपको इसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा. यू कैन रिवाइज इट ऑल्सो. ठीक है, तो आगे चलें. यस सर. Yes sir, आगे. यस सर. So now next is the projection of straight line. So there can be many cases of the straight line. So it can be a vertical line. It can be a line which is parallel to both HP and VP. It is a line which is inclined to HP and parallel to VP. It is a line which is inclined to VP and parallel to HP, and the line inclined to both HP and VP. So we will try to understand one by one in each case. So you see first case. This is a line which is perpendicular to HP and parallel to VP. So a line AB is given. You can imagine this line. ये समझ में आ रहा है सबको? Yes sir. Yes, AB sir. line, it is perpendicular to HP. समझ में आया? And Yes, parallel sir. to VP. ठीक है. Now it is at a some distance. ये distance specify कर देंगे हम. समझ में आया? यहाँ भी लिखा नहीं है. Suppose this line is parallel to VP. So when you will see from this side, तो front view कहाँ बनेगा? This will be the front view, A dash B dash. Is that clear? Yes sir. Similarly, when the top view you will see from the top, so A और B point merge कर जाएंगे, तो उनका इमेज क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा, and that will be AB. ठीक है. So when you open this up, so this will be, you will be drawing A dash B dash here as a front view and AB as a top view. So this is a orthographic view. Is that clear? आपने Yes, sir. बिल्कुल ऐसे ही बनाना है. यही फोटो बनानी है अपनी ड्राइंग में, बिल्कुल इसी तरह. सर, ठीक सर है? एक बार सर, और हमें- repeat कर दीजिएगा. सर हमें ऐसा ही दिया जाएगा कि आपको ये सिर्फ परपेंडिकुलर. स्टेटमेंट दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा. ये आपने इमेजिन करना है. ठीक है. आपको Okay, सिर्फ ये स्टेटमेंट दी जाएगी, ए लाइन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. सो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर. तो हमने क्या किया? सिंपली वी हैव टेकन ए लाइन. इस लाइन को जब हम इधर से देखेंगे तो इसका पॉइंट ए डैश यहाँ दिखाई देगा, बी डैश यहाँ दिखाई देगा. तो दिस बिकॉज वी आर लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट, so this will be the front view. When you see from the top, so this line will merge, क्योंकि A और B पॉइंट सेम लाइन में है तो A भी आ जाएगा, उसका एक पॉइंट दिखेगा. ओके. तो when you open this plane, तो ये प्लेन नीचे आ जाएगा, वो प्लेन ऊपर चला जाएगा. डिफिकल्ट है या सिंपल है? सर क्वेश्चन सर पूछेंगे सर आप, तो सर इमेजिन करने में डिफिकल्ट लगेगा सर. यही तो ड्राइंग है बच्चा जी, और क्या ड्राइंग है? हम तो पूरी इमेजिन करके पूरी बिल्डिंग बना देते हैं. आपको इंजीनियर बनाना है या क्या बनाना है? सर तो ऐसे में तो सर हम ही बना देंगे सर, लेकिन सर पिक्चर सब बनाने में सर
ये पिक्चर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपने इमेजिन करना है, चाहे रफ में इमेजिन करिए कैसे भी। आपको तो ये बनाना है बस। और पिक्चर बनाने में भी क्या है, व्हेन यू आर इंजीनियर यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ। ड्राइंग तो लैंग्वेज है इंजीनियर्स की। इफ यू आर स्केर्ड ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग से डरते हो, तो फिर बोल ही नहीं पाओगे जिंदगी भर। यही तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वरना तो ये ड्राइंग तो सभी इंजीनियर्स को पढ़नी पड़ती है। कौन बोल रहा है कि बनाना डिफिकल्ट है, मुझे बताओ, क्या नाम है, कौन बोल रहा है? सर मैं सर सोनू। हैं? नहीं, मैं डांट थोड़ी रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है। नहीं सर, सर मैं सोनू बोल रहा हूँ सर, वही पूछा हाँ, हूँ सर। तो आप तो जबरदस्ती में सर डरे थोड़ा हुए हैं प्रॉब्लम बहुत तो होगा ज्यादा। सर। नहीं सर, डरे नहीं हुए हैं। हाँ, तुम तो भैया फिर ऐसा करो, बीए एमए करो। इंजीनियरिंग में तो थोड़ा सा आदमी को दबंग होना पड़ता है, समझ गए? तो ठीक है इसको सर। आपने इमेजिन करना है और कुछ नहीं करना है। सामने जब आप 10 बार देखोगे इसको, शक्ल भी तो याद हो जाती है। किताब में कैसे याद होता है, जब व्हेन यू आर लुकिंग ए ऑब्जेक्ट 10 टाइम्स, तो वो आपके दिमाग में छप जाती है इमेज। आगे चलें। यस सर, सपोज क्लियर है। इसमें इसमें मैं बोलूं, ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू एच पी, ठीक है, एंड 3 सेंटीमीटर above HP, above HP, and 4 centimeter in front of VP. सपोज ये आपको स्टेटमेंट दे दिया मैंने, तो हाउ यू विल ड्रा? So 3 centimeter above HP. That means it is the point B is 3 centimeter. So this distance is how much? 3. 3 सेंटीमीटर। And 4 centimeter above HP in front of VP. So this distance is 4. ठीक है? तो इसका मतलब जब आप इसे नीचे बनाएंगे, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा बोलो? दिस डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। गलत। नो सर, 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है? एंड दिस डिस्टेंस विल बी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, क्योंकि वो ऊपर एक नीचे चला जाएगा। हाँ, ये समझ लीजिए। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू से देखेंगे तो। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। पहले तो ये देखिए, लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी। ये एंगल 90 है ना? यस सर। दिस एंगल इज 90, so it is perpendicular. So now it is say it and parallel to VP. तो ये लाइन पैरेलल है VP के, पैरेलल नजर आ रही है। तो पहला केस है ये, जो हमने आपको अभी 6-7 केस होता है, ठीक है? So if it is 3 centimeter above HP, so that means point B is 3 centimeter. This distance is 3 centimeter. ये मैंने जान के वहां नहीं खींचा। And 4 centimeter in front of VP, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ है। तो ये वाला 4 आएगा ना, जो आप टॉप से देखोगे, दिस डिस्टेंस विल बी 4 ना? नहीं? एंड जब इधर से देखोगे तो दिस डिस्टेंस विल बी 3। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे लगता नहीं समझ में आ रहा है। सर समझ में आ गया। सोनू कुमार समझ में आया? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर। यार इसको इसको बच्चे को कुछ दो यार, उसको अभी, ये तो वहीं का वहीं बैठा है। ये तो तुम लगता है हमको ही फेल कर दोगे। हम 35 साल से 40 साल से पढ़ा रहे हैं, हमने ऐसा बच्चा नहीं देखा कि जो कहता है थोड़ा थोड़ा समझ आता है। सारी चीज तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने अगर इस लाइन को मैं बोलूं एक कुत्ता बैठा है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। सर ये पिक्चर समझ में आ रहा है सर। चलो ठीक है, समझो जैसे भी समझो, कुत्ता भी समझो। ना, ये सेकंड केस है हमारा। ए लाइन इज parallel to HP now. Now see this line AB is given.
You can see this line. Line AB is parallel to HP and parallel to VP. यही है ना? Yes, yes sir. sir, AB, ये तो समझ में आ रहा है. तो जब आप टॉप से देखेंगे इसको, when you see from the top, तो ये वाला व्यू दिखाई देगा. yes sir, सभी बच्चे बोले अगर समझ में आया तो. समझ में आया है? यस सर, समझ में yes आया sir, सर. समझ Yes, में आ sir. गया. ए का इमेज ए बनेगा, बी का इमेज बी बनेगा टॉप से. समझ में आया? जब आप इसको फ्रंट से इधर से देखेंगे, इस ए का इमेज वर्टिकल प्लेन पे ए डैश बनेगा, इसका बी डैश बनेगा. तो दिस विल बी द फ्रंट व्यू. So front view will be A dash B dash and top view will be AB. ठीक है? So Yes sir, when you open this, इसको आपने ऐसे ओपन कर दिया, मतलब ये वाला ऐसे ओपन कर दिया, नीचे आ गया. तो HP इज नियर, VP ऊपर है. AB A dash B dash यहाँ बन गया और AB यहाँ बन गया. इसमें क्या दिक्कत है? अब ये बताओ सोनू कुमार, थोड़ा थोड़ा समझ में आया या पूरा समझ में आया? सर पूरा समझ में आया सर इस बार. तो ऐसे ही समझना पूरा पूरा. समझ गए? अब हम आगे इसमें ऐड करते हैं ए लाइन ए बी. ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं इट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसकी स्टेटमेंट ऐसे होगी, ए लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, पॉइंट ए एंड बी, ऐसे करके मैं दूंगा. पॉइंट ए एंड बी आर 6 सेंटीमीटर above HP and 4 centimeter in front of VP. ये फिगर नहीं दी हुई है आपको, तो इससे क्या समझोगे? जब हमने बोल दिया A and B are 6 सेंटीमीटर above HP, that means A और B की एलिवेशन सेम है. तो it is parallel to VP. समझ में आ गया ना? And parallel to HP. yes sir, इसको ड्रॉ करने का तरीका यह है कि आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन इमेजिन कर ली. नाउ इट सेज ए एंड बी आर 6 सेंटीमीटर. तो ये दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर ए और बी का. ठीक है, एंड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी. तो दिस डिस्टेंस इज 4 एंड दिस डिस्टेंस इज. तो ये क्लियर हो गया कि इट इज ए पैरेलल लाइन and it is lying in the first quadrant. yes sir, Yes, sir. समझ में आ गया ना? तो जब आपने Yes, sir. इसको खोला, तब आप मुझे बताइए कि हाउ इट विल लुक लाइक. कौन सा 6 होगा, कौन ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस विल बी हाउ मच? ये डिस्टेंस विल बी हाउ मच? sir, 4, और तो नहीं, गलत तो कह दूंगा तो 6 सही हो ही जाएगा. 4 कैसे होगा? अरे आप देख तो इधर से रहे हैं ना, जब आपने इसे खोला तो ये प्लेन तो नीचे आ गया, ये डिस्टेंस ये सामने नजर नहीं आएगा ये. yes sir, फिर ये 6 होगा. समझ में आया? और जब आप ऊपर से देखेंगे तो इसके पैरेलल ये 4 और 4, ये पैरेलल नहीं है, ये डिस्टेंस 4 yes sir, Yes, sir. समझ में आया या नहीं आया? आ गया sir. yes sir, समझ में आ गया. तो दिस विल बी द वन प्रॉब्लम. अगर मैं इसी को लाइन को पीछे कर दूं, जैसे मैंने पॉइंट पीछे किया था, तो कैन यू ड्रॉ? अभी मैं आपको यही दो केस करा रहा हूं, समझ गए?
इसके आगे मैं कराऊंगा बाद में। तो फॉर टुडे ओनली दिस मच, इसकी आप प्रैक्टिस करिए। ओके सर। पॉइंट चारों क्वाड्रेंट में, और लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन एंड पैरेलल लाइन। ठीक है, सफिशिएंट है या और करा दूं आगे? नो सर, आज इतना ही पहले पढ़ लेंगे नहीं वापस। तो कंफ्यूज हो जाओगे। यस सर। हाँ, तो ये देखोगे, देखोगे कहाँ से ये क्लासरूम से। है? क्लासरूम में तो अगर मैं डालूंगा तभी तो देखोगे। अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर मैं रिकॉर्ड करके इतना सर पूरा, डाल दीजिएगा सर। चलो देखते हैं, क्योंकि इसमें आगे और भी है ना, वो कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं वो सारा डाल दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सर आप आज का रिकॉर्डिंग में अब डाल देखते हैं, दीजिए। अगर वैसे हो जाएगी तो आज की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। चलिए, नहीं तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं अपना कॉपी पेन साथ में लेके बैठा कीजिए, वरना ये क्लासरूम की जो टीचिंग है ये आपको बर्बाद कर देगी, बता रहा हूँ। अगर आप लोग लिखने की आदत अपने पेन पेंसिल की छोड़ देंगे, क्योंकि छूट ही गई है बच्चों की पिछले पेंडेमिक में, तो इसीलिए बच्चों को ये सोनू कहता है ना समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सर जैसे सर न्यू हूँ ना सर, तो उसको समझने में सर टाइम लगता है सर। नहीं नहीं, हम तो बेटा पहली बार देख रहे हैं सर, इसलिए समझने में प्रॉब्लम हो रही है। पहली बार तो भाई सब तो लोग हम लोग भी तो न्यू है। पहली बार देख रहे हो, सब कोई बात नहीं। चलिए तो ठीक भाई है, अपना छोड़ो ना भाई। तो आई थैंक यू वेरी मच फॉर ए पेशेंस लिसनिंग, सो वी स्टॉप अवर प्रेजेंटेशन ओवर हियर। सर डाल दीजिएगा सर वीडियो सर।